بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشیل۔ ناظرین، آج بھی جو ہمارا موضوع ہے وہ حسب روایت انٹرنیشنل موضوع ہے اور اس پر مشرق وسطیٰ میں تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال اور اس میں روس اور ایران میں جو معاملات طے پا رہے ہیں اس حوالے سے، اور امریکہ کا اس علاقے میں اب کیا کردار ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ ناظرین، چین نے سعودی عرب کے ساتھ معاملات آگے بڑھائے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک خطے میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور اس حوالے سے عرب ممالک کی اکثریت بھی سعودی عرب اور چین کے اس تعلق میں اور تعامل میں سعودی عرب کی ہم نوا نظر آ رہے ہیں، اور یہ عرب ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سعودی عرب چین کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے گا وہاں عرب ممالک بھی سعودی عرب کے پیچھے ہوں گے، اور وہ ان کے ساتھ اس ان تعلقات کو مزید استحکام دیں گے اور ان کو وسعت بھی دی جائے گی۔ عرب دنیا میں اس کو سراہا جائے گا اور اس حوالے سے جو معاملات ہیں وہ سعودی عرب کے دیکھتے ہوئے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ناظرین، محمد بن سلمان کے ساتھ پیوٹن کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے تیل کی پیداوار کے حوالے سے اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ ناظرین، روس اس وقت مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے امریکہ کا کردار مستقبل میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے، اور یہ کلہاڑی یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو بہلا پھسلا کر ایران کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور اب جو اسرائیل کی جانب سے ایران پر گزشتہ شب اور آج 2 دن قبل حملے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے اب اسرائیل جو ہے وہ ان دی لائن آف فائر آ چکا ہے۔ ایران کے رد عمل کا وہ نشانہ بنے گا، کیونکہ گزشتہ شب جو ہے وہ اسرائیل نے دوبارہ ایران پر حملہ کیا ہے، اور ایران کے کچھ ٹرک جو ہیں وہ لبنان جا رہے تھے جن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹرک ہیں یہ اسلحہ لے کر لبنان جا رہے تھے جو حزب اللہ کو فراہم کیا جانا تھا، تو اس وجہ سے اسرائیل نے ان ٹرکوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ابھی تک ایران کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب CIA چیف اور امریکی سیکرٹری خارجہ دونوں اسرائیل میں موجود ہیں، اور وہاں بیٹھ کر وہ ان حملوں کی باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں۔ CIA چیف نے باقاعدہ یہ ٹارگٹس دیے ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے اسرائیلی فورسز نے یہ حملے کیے ہیں، اور ان حملوں کی وجہ سے ایران میں ظاہر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور یہ ایرانی سلامتی کے خلاف اقدام ہے جس کا رد عمل ظاہری طور پر تو ابھی نہیں آیا، لیکن یہ آنا ضرور ہے، کیونکہ ایرانی اس حوالے سے کافی سیخ پا ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے شدید رد عمل کا عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ ناظرین، ہماری جو اطلاع ہے اس حوالے سے یہ میرا تجزیہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ان حملوں کا رد عمل اپنی سرزمین سے نہیں دے گا، بلکہ شام سے اس کا رد عمل جائے گا، اور یقیناً یہ اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ ناظرین، ایرانی اس معاملے میں جو ہیں وہ نہ ہی خوف زدہ ہیں اور نہ ہی وہ خاموش ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے ایران کی اس معاملے پہ فوری رد عمل نہ دینا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خطے میں مستقبل قریب میں یعنی کچھ دنوں میں تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ جنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور اس جنگ میں ایران تنہا نہیں ہوگا۔ اس جنگ میں روس، چین اور شمالی کوریا بھی ایران کی پشت پر کھڑے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں اور ان کے نیٹو اتحادی ہوں گے ظاہر ہے۔ تو یہ جو بلاک بنتا نظر آ رہا ہے، اس بلاک میں واضح طور پر یہ عالمی جنگ کے آثار پیدا دکھائی دے رہے ہیں، اور ناظرین، اس عالمی جنگ کا آغاز جو ہے وہ اب روس یوکرین جنگ سے تو ہو چکا ہے، مزید اب اس جنگ کو وسعت دیتے ہوئے اس کو مشرق وسطیٰ میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور یہاں پر اگر ایران اسرائیل تصادم ہوتا ہے تو اس سے پھر یہ پورا خطہ اس
जंग की लपेट में आ जाएगा। नाज़रीन, इसमें दिलचस्प बात यह है कि पहली दफ़ा सऊदी अरब जो है वो अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक में दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब का जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनका वज़ीर आज़म सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पुतिन से गुफ्तगू की है। इसके अलावा उनके चीन के साथ भी मुसलसल राब्ते हैं और इस सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और अगर ये जंग होती है तो फिर इसमें बाकायदा तौर पर जो है वो रूस, ईरान, चीन और इनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर फिर जहाँ इसराइल नाबूद होगा, वहीं अमेरिका को भी पूरी इस खित्ते से देश निकाला मिल जाएगा, उसका बोरिया बिस्तरा भी यहाँ से गोल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका इंतहाई मुआशी बदहाली का शिकार है और इस वक्त उनकी जो मईशत है वो तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है। दिवालिया होने के बिल्कुल करीब हो चुका है अमेरिका, और हो सकता है कि कुछ दिनों में ये दिवालिया होने का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया जाए। तो अमेरिका की जानिब से ये जो सूरत हाल है ये बड़ी तशवीशनाक है कि अमेरिका ख़ुद तो मर रहा है, मुआशी तौर पर दिवालिया हो रहा है, लेकिन ख़ित्ते में बदअमनी को भी साथ साथ फ़रोग़ दे रहा है। होना तो ये चाहिए था कि वो ख़ित्ते को छोड़कर, मशरिक़ वस्ता को छोड़कर, इन ममालिक के मामलात को छोड़कर अपनी मईशत पर तवज्जो देता और अपने आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अपनी मईशत को मजबूत करता। लेकिन हैरत है कि अमेरिका में बैठे हुए पॉलिसी साज जो हैं वो जहाँ अमेरिका की तबाही को खामोशी से देख रहे हैं, वहीं वो मशरिक़ वस्ता में भी एक नई आग लगाने के दर पे हैं। दूसरा नाज़रीन, एक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो रूसी वज़ीर ख़ारजा से गुज़श्ता रोज़ मुलाकातें हुई थी, इस मुलाकात में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कहा था कि आपके यहाँ आने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आते हो, बातें करते हो मुआहदे की और लेन देन की, लेकिन जब वापस जाते हो तो अमेरिका का टेलीफोन आ जाने पर आप लेट जाते हो और फिर कोई मुआहदा आगे बढ़ता नहीं है। हालिया दौरे में भी कोई बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं हुआ रूस के साथ पाकिस्तान का, बस नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात थी कि दोनों वज़राए ख़ारजा ने अपनी मुआशी सूरत हाल और तवानाई बहरान के हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन कोई मुआहदा साइन नहीं हुआ। और इसके बावजूद वो रूसियों ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उन्होंने कहा कि पहले आप अमेरिका से पूछ लें, क्योंकि बाद में अगर आप पूछ कर ये मामला इधर लपेट देंगे, जैसे आपने पाक ईरान गैस पाइपलाइन के साथ किया कि आपने ईरान से गैस पाइपलाइन तो डलवा ली, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो अमेरिकी टेलीफोन पर पाकिस्तान जो है वो इस मुआहदे से भाग गया। तो इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि नहीं, वो अमेरिका को एतमाद में लेंगे और उन्हें यकीन है कि अमेरिकी रूस और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले इन मुआहदों और लेन देन के हवाले से इस पर तनकीद नहीं करेंगे और ना ही इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। लेकिन रूस ने अभी तक इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि ठीक है हम आपके साथ मुआहदे के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू का नतीजा रूसी ये कहते हैं कि उस वक्त ही सामने आएगा जब अमेरिका की जानिब से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। दूसरा नाज़रीन अहम इशू ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा इस वक्त जो हैं वो इसराइल में मौजूद हैं और ज़राए ने ये इतला दी है फरवरी के आखिर में वो इंडिया का दौरा करने आ रहे हैं और इस दौरे में नाज़रीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की प्लानिंग है। और हमारे ज़राए ने इस हवाले से जो बताया है वो ये बताया है कि ये जो अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा का दौरा होगा इंडिया का, उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने की भी बातें होंगी और ये चीज़ें भी एजेंडे में शामिल है कि इंडिया को गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर हमले के लिए शह दी जाएगी। इसके अलावा सिंध का कुछ इलाका है उस पर भी कब्ज़े के हवाले से कुछ इंडिया के हलकों में ये बातें चल रही हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो ख़ास इंडिया के ग्रोह हैं उनके हवाले से भी कि वो अलहदगी पसंद तहरीकों को भी सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के लिए एक नया जो हेलीपैड उनको मुयसर आया अफ़गानिस्तान की शक्ल में, तो इंडिया वहाँ पर भी अपने मंसूबे ऐसे शुरू किए हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बदअमनी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। और नाज़रीन अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी, समाजी, मुआशी और मजहबी सूरत हाल को देखें तो इसमें वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज में साजिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान को खाकम बदहान के तबाह करने के लिए मनसूबे पर अमल जारी है। नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में अपने पिछले व्लॉग में मुसलसल ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। अगर ये हुक्मरान
इमरान इतने ही पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के ख़जाने में अकाउंट्स में पड़ा हुआ बाहर जो अरबों रुपया है वो पाकिस्तान में ले आएँ तो पाकिस्तान संभल सकता है। सिर्फ शरीफ बरादरान अपना बाहर पड़ा हुआ पैसा ले आएँ। जरदारी और दीगर जितने भी PDM में शामिल जमातों के रहनुमा हैं उनके भी भारी अमाउंट उनकी बाहर पड़ी हुई है। अगर वो वापस आ जाए तो भी पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अगर शरीफ बरादरान अपना पैसा ले आएँ तो भी पाकिस्तान का ये मुआशी बहरान जो है वो हल हो सकता है, पाकिस्तान को सहारा मिल सकता है। लेकिन नाज़रीन ऐसा ये कभी नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें मुल्क से कोई गर्ज नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ये मुल्क को तबाह करने का एजेंडा लेकर आए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान रोज़ बरोज़ मुआशी तौर पर कमज़ोर हो रहा है और जब ज़ाहिर है मुआशी तौर पर दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान तो फिर मुल्क में खाना जंगी डेफिनेटली होगी, जराइम की शरह में एकदम इजाफा हो जाएगा। जिनके बच्चे भूखे होंगे, जिनको घर आटा नहीं होगा, जिनके घर खाने के लिए कुछ नहीं होगा, वो कहाँ से अपने वसाइल पैदा करेंगे? तो ज़ाहिर है उसके लिए जराइम की दुनिया में वो कदम रखेंगे लोग और फिर जराइम की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा और ये शरह जो है वो मुल्क के लिए, मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक साबित होगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त के इंडिया को दर्शा दी जा रही है और हमारे जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मेरा तज्ज़िया है कि मौजूदा जो करंट सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो हो सकता है कि मार्च में भारत कोई ना कोई ऐसा जारहियत का मुज़ाहरा कर दे। और वो देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी बदअमनी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, वहाँ भी ऐसे मुज़ाहरों को प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के इलाकों में भी हो रहा है। अफ़गानिस्तान बॉर्डर की जानिब से जो हमारे पख्तून इलाके हैं वहाँ पे भी मुदाखलत हो रही है। दहशत गर्दी के वाक़यात भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ हैं और ऐसे लगता है कि 5-6 बलाओं ने मुश्तरका अटैक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर और उसका हल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में मुखलिस की आदत आगे आए और आवाम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर स्टैंड ले, तभी जाकर ये मसला हल हो सकता है। वरना ये जो इस वक्त हुकूमत मुसल्लत है इससे ऐसा ही लग रहा है कि ये पाकिस्तान की हिमायत नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुखालफत का एजेंडा लेकर आई है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारे पाकिस्तान का हामी हो, नासिर हो। अल्लाह निगहबान।